दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं बात करूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 259, 260 एंड 261। अनुच्छेद 259, अनुच्छेद 260 एंड अनुच्छेद 261। ये क्या कहता है? एक तो ये बताता है पहली अनुसूची के भाग खा के राज्यों के सशस्त्र बल के बारे में। सशस्त्र जो बल है उसके बारे में बात की जा रही है। अनुच्छेद 260 बताता है भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। 261 आर्टिकल बताता है सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियों के बारे में। तो चलें स्टार्ट करें। 259 आर्टिकल सेज armed forces in states in Punjab, 259 article says armed forces in states in part B of the first schedule, repealed by the Constitution 7th Amendment Act 1956 S29 and schedule। 260 आर्टिकल कहता है jurisdiction of the Union in relation to territories outside India। 260 article says about jurisdiction of the Union in relation to territories outside India के बारे में। क्या है? The government of India may by agreement with the government of any territory not being part of the territory of India undertake any executive, legislative or judicial functions vested in the government of such territory, but every such agreement shall be subject to and governed by any law relating to the exercise of the foreign jurisdiction for the time being in force। 261 article says 261 आर्टिकल बताता है कि पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे में। 261 आर्टिकल सेज अबाउट पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। नंबर 1, full faith and credit shall be given throughout the territory of India to public acts, records and judicial proceedings of the Union and of every state। Number 2, the manner in which and the condition under which the act, records and proceedings referred to in clause first shall be proved and the effect thereof determined shall be as provided by law made by Parliament। Number 3, final judgments or orders delivered or passed by civil courts in any part of the territory of India shall be capable of execution anywhere within the territory according to law। अब मैं पढ़ूंगी आर्टिकल 262 डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर्स। जो भी हमारा जो जल संबंधी जो विवाद होता है, जैसे कावेरी जल विवाद काफ़ी लंबे समय तक चला था। कावेरी जल विवाद काफ़ी लंबे समय तक भारत में चला था और कई बार चला है। तो ये नदियों का जो पानी है उसका जो बंटवारा होता है कई राज्यों को लेकर, तो उसके बारे में दो या अधिक राज्यों के बीच में जो भी जल वितरण को लेकर जो विवाद चलता है वो कई राज्यों के बीच में, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में होता है। तो उससे संबंधित जो भी डिस्प्यूट्स हैं रिलेटिंग टू वाटर्स, तो जो भी झगड़े हैं वो उसकी बात की जा रही है अनुच्छेद 262 के तहत। अनुच्छेद 262 कहता है adjudication of disputes relating to waters of interstate rivers or river valleys। जो भी नदी घाटीज हैं और जो इंटरस्टेट अंतर्राज्यीय जो नदियां हैं उनमें जो
पानी होता है सिंचाई के लिए या फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, जल विद्युत तैयार किया जाता है, या फिर तमाम तरह की जो, क्योंकि वाटर के बिना तो इंसानी लाइफ डिपेंड है पूरी वाटर पे, पानी नहीं होता तो क्या होगा, जो हमारे समस्त जो क्रिएचर है वो सब ख़त्म हो जाएगा। लिविंग्स जो स्टेटस है हमारा, जो ग्रोथ करता है वो पानी के ऊपर ही डिपेंड करता है। एनिमल्स, ह्यूमंस एंड पशु पक्षी एंड पेड़ पौधे सभी पानी के जरिए ही वो लोग जीवित रहते हैं। तो बात करते हैं डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर्स, जल संबंधी विवाद। जल संबंधी जो विवाद है उसका निपटारा करने के लिए हमें ये 262 आर्टिकल बताता है। 262 आर्टिकल says about disputes relating to waters, adjudication of disputes relating to waters of interstate rivers or river valleys. Number 1, Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the waters of or in any interstate river or river valleys. Number 2, notwithstanding anything in this constitution, Parliament may by law provide that neither the Supreme Court nor any other court shall exercise jurisdiction in respect to of any such disputes or complaint as is referred to in clause 1. अब मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ। अनुच्छेद 259 पहली अनुसूची के भाग खा के राज्यों के सशस्त्र बल। पहली अनुसूची के भाग खा के राज्यों के सशस्त्र बल के बारे में बात करता है। संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 अनुसूची द्वारा निश्चित कर दिया गया है इसको। अनुच्छेद 260 बताता है भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। जो भारत के बाहर के राज्य क्षेत्र हैं उनके संबंध में जो संघ की अधिकारिता है उसके बारे में। भारत सरकार किसी ऐसे राज्य क्षेत्र की सरकार से जो भारत के राज्य क्षेत्र का भाग नहीं है, राज्य क्षेत्र का भाग नहीं है, करार करके ऐसे राज्य क्षेत्र की सरकार में निहित किन्हीं कार्यपालक, विधायी या न्यायिक कृत्यों का भार अपने ऊपर ले सकेगी। क्या कहा जा रहा है? जो भारत सरकार किसी ऐसे राज्य क्षेत्र की सरकार से जो भारत के राज्य क्षेत्र का भाग नहीं है, करार करके ऐसे राज्य क्षेत्र की सरकार में निहित किन्हीं कार्यपालक, विधायी या न्यायिक कृत्यों का भार अपने ऊपर ले सकेगी, किंतु प्रत्येक ऐसा करार विदेशी अधिकारिता के प्रयोग से संबंधित समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन होगा और उससे शासित होगा। अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ। क्या कहता है अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्य और अभिलेख, न्यायिक कार्यवाहियों के बारे में? भारत के राज्य क्षेत्र के सर्वत्र संघ के और राज्य और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों, न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी। अनुच्छेद 261 कहता है कि सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ इनके बारे में कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ के और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, संघ के कार्य और सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों, न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी। इसके बारे में बात की जा रही है। नंबर 2, खंड 1 में निर्दिष्ट
कार्यों, अभिलेखों, कार्यवाहियों को साबित करने की रीति और शर्तें, उनके प्रभाव का अवधारण संसद के द्वारा बनाई गई विधि द्वारा उपबंधित रीति के अनुसार किया जाएगा। नंबर 3, 261 का नंबर 3, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में जो सिविल न्यायालय हैं उनके द्वारा दिए गए अंतिम निर्णयों या आदेशों का उस राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी विधि के अनुसार निष्पादन किया जा सकेगा। जो भारत राज्य के क्षेत्र के किसी भाग में सिविल न्यायालय हैं उनके द्वारा दिए गए जो अंतिम निर्णय हैं, फाइनल जो डिसीजंस हैं या आदेश हैं, उन राज्य क्षेत्रों के भीतर कहीं भी विधि के अनुसार, कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार निष्पादन किया जा सकेगा, ये इसमें कहा जा रहा है। अनुच्छेद 262, जल संबंधी विवाद। अंतर्राज्यिक नदियां या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। अंतर्राज्यीय नदियां जो संपूर्ण भारत क्षेत्र के अंदर जितनी भी नदियां बहती हैं, जिन नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, विद्युत परियोजनाएं हैं, जो डैम्स हैं, उनसे रिलेटेड या फिर नदी दून्स, नदी घाटियाँ, उनसे रिलेटेड जो जल संबंधी विवाद हैं, झगड़े हैं, उनका न्याय निर्णयन के बारे में ये अनुच्छेद कहता है। नंबर 1, संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यिक या नदी दून के या उसमें जल के प्रयोग, क्योंकि नदियों में क्या जल होता है जो सिंचाई व्यवस्था या जल विद्युत बनाने के काम आता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नदियों के किनारे ही चलाए जाते हैं या निर्भर करते हैं। वस्त्र उद्योग जो है उसके भी कारखाने नदियों के किनारे होते हैं। धुलाई, कटाई, सफाई, चमड़ा उद्योग, ये सब चीज़ें क्या हैं, नदियों के किनारे ही डेवलप होते हैं जितने भी उद्योग हैं। तो कहने का मतलब है उससे रिलेटेड अंतर्राज्यीय एक राज्य या दो राज्य या एक से अधिक राज्यों के बीच में जल वितरण को लेकर जो झगड़े होते हैं उनको निपटाने के लिए ये अनुच्छेद बात करता है, शांतिपूर्ण उनका निपटारा किया जा सके। तो ठीक है दोस्तों, तो क्या कहता है अनुच्छेद 262, अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। नंबर 1, संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यिक या नदी दून या उनमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्याय निर्णयन के लिए उपबंध कर सकेगी। नंबर 2, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी जल विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी कि उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय खंड 1 में निर्दिष्ट किसी विवाद या परिवाद के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मैं मिलूंगी दूसरे अनुच्छेद के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।